Okay, students. So, in today's class, we are going to learn about a very important phenomenon, and the phenomenon that the process that we are going to learn in today's class is oxidative phosphorylation. Okay, and in this oxidative phosphorylation, you will be able to understand when you read this, when you understand the concept behind this oxidative phosphorylation, you will know the fact why or what was the pathway or how it was possible to release energy when after see the glycolysis process we have done. We have learned about the formation of acetyl coenzyme. Then we have seen how the process of glycolysis is linked to the Krebs cycle by means of formation of acetyl coenzyme, and the formation of acetyl coenzyme is also known as link reaction. Okay. So in the previous class, when we have learnt about Krebs cycle, we have seen that FADH2 is formed, NADH plus H plus is formed, okay, and one GTP was also formed, okay, that is similar to ATP. ATP is also formed. So every energy packet has been formed, and now these are ready to release the energy. Okay, so whatever FADH2 and NADH plus H plus which are formed during these cycles, during the cycles of the glycolysis, the link reaction, and the Krebs cycle, they have formed the energy packets, and now we have to take out the energy from them. Okay, so they are just like checks. Okay, FADH2, NADH plus H plus. These are like the checks where the money is there, but you cannot draw that money out unless you deposit your check in the bank. Okay, so you should know the bank from where the energy can be taken out. Okay, so these have to be deposited. These checks have to be deposited in a bank, and the name of the bank is ETA, which is the electron transport system. Okay, so today we are going to learn how this ETS or electron transport system help FADH2 and NADH plus H plus to convert the energy which is stored in them to the ATP of energy. Okay, and that is actually by means actually these molecules, they have free hydrogen ions along with them. Okay, which are formed by reduction. When this NADH when this NAD has accepted hydrogen, and it itself has reduced to NADH plus H plus, or FADH, when FADH2 was formed by reduction of hydrogen, when by accepting a proton, they have changed into this. Now they have plenty of hydrogen atoms in hydrogen ions or protons in them. So these protons, they, with the help of electron transport system, these protons help the oxygen molecule. Okay, oxygen molecule was already formed. Okay, oxygen molecule जो हमारा बना है, उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो इनके पास प्रोटॉन्स हैं FADH2 के पास और NADH और H+ के पास जो प्रोटॉन्स हैं, hydrogen molecule will act as the final acceptor of the protons and will change into H2O, and then the equation of the entire equation of photosynthesis of this respiration will be end. Okay, जब हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन की जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा कि जब ये फूड ब्रेक होता है, ओके, तो फूड ब्रेक होता है तो वहां पे एक तो रिलीज होता है हमारा CO2, ठीक है ना, CO2 हमारा रिलीज हुआ, ऑक्सीजन हमारा यूटिलाइज, मैंने ऑक्सीजन बोला था, ऑक्सीजन फॉर्म तो रेस्पिरेशन उसमें हुआ फोटोसिंथेसिस में। हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा कि जब ग्लूकोज एंटर करता है, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, तो वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक हो जाता है पायरुविक एसिड पे, ठीक है ना। पायरुविक एसिड एक लिंक रिएक्शन के थ्रू लिंक होती है क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP के फॉर्म में, ओके, और NADH plus
H प्लस के फॉर्म में भी। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस में देखोगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ATP के फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो रही है और NADH प्लस H प्लस के फॉर्म में भी हो रही है। व्हेन यू सी द लिंक रिएक्शन मींस एसिटिल कोएंजाइम की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, वहां पे भी आप देखोगे कि NADH प्लस प्लस H प्लस की फॉर्मेशन हुई है। देन आप क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल में भी आप देखोगे कि ATP की फॉर्मेशन हुई है, NADH प्लस H प्लस की फॉर्मेशन हुई है और FADH2 भी बना है। ठीक है, ओके। सो ये जो हमारे एनर्जी पैकेट्स बने हैं, जो ये चेक्स बने हैं, इसके अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट एंड हाउ दिस एनर्जी इज टू बी रिलीज। So this energy will only be released when there is some substances, some complexes, a set of substances which are ready to accept the hydrogen of the free protons which are present along with this. ये जो FADH2 है, NADH plus H plus है, इनके पास बहुत सारा प्रोटॉन प्रेजेंट है। So there should be something which accept these protons, and by accepting the protons, when they oxidize this substances, ये जो substance oxidize हो जाएंगे, तो oxidize होने के बाद now they will be ready to produce the ATP। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, these proton acceptors are present in near the region of inner membrane space of mitochondria। ठीक है, तो ये हम ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे which are all along the mitochondrial membranes। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के पास बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इन प्रोटॉन्स को लेंगे और आगे जाके ट्रांसफर कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात बताओ, मतलब कुछ कंसेप्ट्स हैं। एक्चुअली दिस टुडेज क्लास या दिस phenomenon or the process of oxidative phosphorylation, I have divided this concept into two classes. In today's class we will only learn about the basics of this reaction, and in tomorrow's class we'll complete this कंसेप्ट। ओके, सो आज अगर आप बेसिक समझ जाते हो इस क्लास का, इस पर्टिकुलर फिनोमिनन का, तो कल आप इसका प्रोसेस भी समझ जाओगे कि ये प्रोसेस कैसे होगा। बट इफ यू वोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, FADH2 NH NADH प्लस H प्लस, ये सब क्या होते हैं और ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, कॉम्प्लेक्सेस क्या है, सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन, अच्छा मैं बात करी थी हमारे रिएक्शन की, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन की, तो हमने वहां पे देखा था कि ग्लूकोज जब ब्रेक होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ओके। सो ड्यूरिंग दिस एरोबिक रेस्पिरेशन वी हैव फाउंड दैट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, ओके, by glycolysis. Then there is a link reaction, and then the acetyl coenzyme enters the Krebs cycle, and Krebs cycle helps in formation of CO2। Krebs cycle के help से CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हो गया। CO2 के अलावा रेस्पिरेशन में और कौन सा मेजर प्रोडक्ट रिलीज होता है? कैन यू नेम दैट मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज रिलीज्ड along with CO2 in respiration? Yes, anyone from class? Yes, students. Dipanshi, are you there? Yes, ma'am. Yes. What is the major product which is released? Just you can you know what is the reaction for respiration. Just recall that and answer the question. What is the major substance which is released along with CO2 in respiration? CO2 के साथ एक और substance क्या release होता है? Yes, Praveen, your answer is right. Let Dipanshi say the answer. Dipanshi, अभी आपने ये बोला ना, बस मैं तो सिंपली रिएक्शन पूछ रही हूँ ना कि रिएक्शन में जब ग्लूकोज ब्रेक हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दो सब्सटेंसेस बने हैं। एक मैंने बता दिया कि CO2 रिलीज हो रहा है, जो हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा। क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था ना, 3 जगह CO2 रिलीज हुआ है। ठीक है ना, व्हाट इज द अदर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड? इट इज कीटोग्लोट्रिक एसिड। इट इज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या रिलीज हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल। तो CO2 के फॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और
For understanding this today's concept oxidative phosphorylation, you should be clear about glycolysis, the link reaction and the Krebs cycle. Then only you will understand this. अभी आपको मेजर, चलो आप लोगों को नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी उसका कंसेप्ट है, तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है एंड CO2 रिलीज होता है, एक गैस रिलीज होती है which is CO2 and one substance, one very important substance is released which is water molecule along with formation of 38 ATP of energy. ठीक है, इतना तो ये रिएक्शन याद है आपको। तो CO2 तो हमारा ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल में बन गया और जो हमारा मेजर अब एक प्रोडक्ट बना है H2O, ये कहाँ पे फॉर्म हुआ, ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। So this H2O will be only formed here with the help of this ETS, with the help of oxidative phosphorylation. क्योंकि H2O भी क्या क्या आपके the elements which are present in H2O, H2O लिखते हैं ना, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें H है, ठीक है, और इसमें क्या है, 2 एटम्स ऑफ H है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, तो व्हाट इज एक्चुअली देयर, प्रोटॉन्स, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और आई थिंक द बोर्ड इज नॉट कंप्लीटली विजिबल। यस, ओके, तो ये जो हमारा H2O फॉर्मेशन हो रहा है, H2O फॉर्मेशन के लिए all the conditions should be there, then only this H2O will be formed. जब तक CO2 और H2O पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती है। फॉर रिलीज ऑफ एंटायर 38 ATP ऑफ एनर्जी, the substances CO2 and H2O should be definitely formed. अगर CO2 और H2O नहीं बनता है तो हमारी 38 ATP एनर्जी ना बनकर उससे और कम होती है, ठीक है। अब ये H2O की फॉर्मेशन कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा और ऑक्सीजन है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो मतलब ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन को किस चीज की एडिशन चाहिए, यहाँ पे प्रोटॉन्स की। जब ऑक्सीजन प्रोटॉन से ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। दोबारा बता रही हूँ, since it is aerobic respiration, oxygen is already present inside the mitochondria, ठीक है। Now this oxygen needs certain protons and addition of protons is known as reduction. आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, देन आपकी कंप्लीट रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी। ये प्रोटॉन्स कहां से आ रहे हैं, ये इन प्रोटॉन्स का सोर्स ये दोनों हैं, एक FeDH2 है और NADH+H+ है, बिकॉज़ दे हैव प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, द फाइनल एक्सेप्टर, एंड द फाइनल एक्सेप्टर इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका MCQ क्वेश्चन है कि इन ETS व्हाट इज द फाइनल एक्सेप्टर फॉर प्रोटॉन। सो द फाइनल एक्सेप्टर फॉर प्रोटॉन्स इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दिस ओनली एब्सॉर्ब्स द प्रोटॉन सो दैट इट गेट रिड्यूस्ड टू H2। बेटा इतना अगर किसी के समझ में नहीं आया तो अभी आप पूछ लो, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। इतना कंसेप्ट अगर नहीं आएगा ना जो मैंने अभी तक बताया 5 मिनट्स में, तो हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। So if you are able to understand up till what I have taught you, then only I will move further. क्योंकि ये इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड इतना। मैम प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। हाँ बेटा, कहीं पे भी डाउट तो पूछ लो। Yes, you can ask. मैम प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। क्या क्या लास्ट लाइन? यस मैम। ओके, You can type your doubts also. मैंने डाउट का सेक्शन खोल के रखा है। मैं जस्ट इतना ही कह रही हूँ कि एक आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए रेस्पिरेशन की, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक होता है, 2 सब्सटेंस बनते हैं, वन इज CO2, वन इज H2O along with ATP, ठीक है। अब CO2 हमारा कहाँ पे बन गया, क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ लिया, ओके।
Now, oxygen is already present inside mitochondria because we are learning aerobic respiration. ठीक है, ऑक्सीजन है हमारा. ये ऑक्सीजन ही तो सोर्स है वाटर बनने के लिए. पर ऑक्सीजन को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? प्रोटॉन्स से. ये प्रोटॉन्स इसको कहाँ से मिलेंगे? These protons are supplied by FeDH2 and NADH+H+. and ये कहाँ से आए हैं? ये फॉर्म हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस में. FeDH2 तो ऑब्वियसली glycolysis, sorry, Krebs cycle में बना है, but this NADH+H+, this is formed during glycolysis, this is formed during the link reaction, and it is also formed during Krebs cycle. तो इनके पास प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है. तो ये प्रोटॉन्स जो हैं ऑक्सीजन अपने साथ ऐड कर लेगा. Whenever there is addition of protons, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन जब प्रोटॉन्स को ऐड करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो किसमें? इट गेट्स रिड्यूस इनटू वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म. जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, CO2 बन गया है, तभी हम कह सकते हैं योर दिस रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कंप्लीट, ठीक है. So the often a question is asked, what is the final acceptor for protons? So in aerobic reaction, so we can say that in aerobic reaction which takes place in presence of oxygen, the final acceptor of oxygen is the final acceptor of protons is oxygen molecule. इसका significance क्या है? इसका significance है कि अगर वो reduce नहीं होगा तो water molecule नहीं बनाएगा. water molecule नहीं बनाएगा तो हमारे aerobic reaction तो रेस्पिरेशन तो खत्म ही नहीं होगा. और अगर वो खत्म नहीं होगा तो 38 ATP की एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, और हम जो है अपने डेली जो वर्कआउट है वी कैन नॉट डू बिकॉज वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क. आवर बॉडी और प्लांट बॉडी कैन नॉट लिव लेस अमाउंट ऑफ ATP ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब हम चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है. दिस इलेक्ट्रॉन transport system, it consists of many such complexes which have the ability to accept that proton, okay, and pass it to the next space, okay. That will be more clear by the diagram of mitochondria, the inner diagram of mitochondria. ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये प्रोटॉन्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ठीक है. दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैरियर्स, ओके, मोबाइल कैरियर्स व्हिच कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जैसे हमने प्लांट्स के इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ा था, दैट दे आर साइटोक्रोम, देयर इज फेरेडॉक्सिन व्हिच कैन pass electron from one carrier to another. Similarly, here also many electron carriers are present which can transfer electrons from one place to another. अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आगे सिस्टम में? अभी तक तो हम प्रोटॉन पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया? उसके लिए आपको हाइड्रोजन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. ओके, यू ऑल नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? yes? It is 1. ठीक है. Okay, 1 is the atomic number. This lower part of board is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So 1 is the atomic number of hydrogen. Okay. Now, if I ask you how many electrons hydrogen has? Electron. 1. Yes, it has 1 electron. 1 electron. ठीक है. तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. And what is the charge on electron? Electron के ऊपर चार्ज क्या होता है? Negative. नेगेटिव होता है, ठीक है. ओके, ये तो हुआ. और you all know that number of electrons are equal to number of protons, ठीक है. number of electrons किसके बराबर होते हैं? number of protons के बराबर होते हैं, ओके. तो अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास और क्या होगा? 1 प्रोटॉन, ठीक है. चार्ज क्या होता है? Positive. ठीक है. Okay. Now, is there any neutron present in hydrogen? हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन No, ma'am. नहीं. ना हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो एटम है, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. तो इसका मतलब यहाँ अगर मैंने 2 हाइड्रोजन, यहाँ तो अभी मैंने एटम लिखे हैं, अगर मैं इसके ऊपर H+ लगा देती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता है? आयन. ओके,
ये क्या हो जाएगा 2H plus. So if I say that it has two hydrogen, here I have written two hydrogen ions. So along with two hydrogen ions, two electrons are also present. जहां जहां पे भी हम प्रोटॉन की बात करेंगे उतने ही जितने अगर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जो इनविजिबल सा है. ओके क्योंकि हमने अभी देखा है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग इफ इट हैज वन प्रोटॉन इफ इट हैज वन इलेक्ट्रॉन आल्सो. ठीक है तो वेयर एवर वी फाइंड excess of protons there the same number of electrons will be also there. ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? Why electrons are also present? क्योंकि उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका मतलब ये हुआ कि wherever हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट, जहां पे भी हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस है या क्रेब्स साइकिल है या आपका लिंक रिएक्शन है एसिटिल कोएंजाइम, जहां पे भी प्रोटॉन फॉर्म हो रहे हैं वहां पे प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं. Is that clear? Okay. Now I'll move to the concept of oxidation and reduction. ठीक है. अच्छा मैं BTS पे थी तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर. So इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि when we see the inner mitochondrial view of inner of the different membranes of mitochondria, we'll study how these complexes are arranged. और ये कॉम्प्लेक्सेस का काम ये होता है कि ये जो है प्रोटॉन्स को they help in transfer of proton from one complex to other complex. So जब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है तभी प्रोटॉन्स के साथ साथ किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स. उसी के साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि जहां पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है. ठीक है. ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट केवल मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं वो मेम्ब्रेन के बीच में घूमते रहते हैं. ओके एंड एट लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्ट में निकल जाते हैं एंड एटीपी की फॉर्मेशन होती है. तो वो भी अभी हम देखेंगे कि वो कैसे होता है. ओके अब मैं ये कहूँगी जो मैंने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. ये होंगे कैसे? The electrons will be transferred from one complex to other complex only when there is a difference in the redox potential. ठीक है. redox potential जब एक दूसरे का ज्यादा होगा तभी पहला अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को ट्रांसफर कर पाएगा. उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि जहां पे भी नहीं समझ में आप पूछ लेना. थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है आज की क्लास और कल की क्लास भी, और आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन के ब्रेक के बाद मैं आज इसको आपको पढ़ाऊंगी. ओके जैसे एक कॉम्प्लेक्स ए है और एक कॉम्प्लेक्स बी है. ठीक है. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स ए हैज टू ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी. ए को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बी को देना है, लेकिन ए अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना बी को दे देगा, या बी इलेक्ट्रॉन से ऐसे थोड़ी ना दे देगा. इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका जो बी कॉम्प्लेक्स है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल, इट्स रेडॉक्स पोटेंशियल शुड बी मोर एज कंपेयर्ड टू ए. when its redox potential will be more than A, then only it will be able to accept the electron from A. जब तक इसका redox potential इसके A के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, ये A से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होगा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे लेस होगा, और उसके बाद जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आएंगे सबका रेडॉक्स पोटेंशियल उससे ज्यादा होता रहेगा. अभी रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? रेडॉक्स पोटेंशियल इज द कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये बी का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अपना किससे ले लेगा? ए से. अब बी के बाद अगर मैं सी लिख देती हूँ, ये और कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा. क्यों? क्योंकि इसका रेडॉक्स पोटेंशियल बी से ज्यादा है. तो इसी तरह से इनर
if you see the cross section of, देखने से actually नहीं पता चलता, by certain reactions only, reactions and certain processes only it is clear that what substances are formed. So when we see the reactions in the inner in the inside view of mitochondria, we'll see that the mitochondrial membrane has 5 different complexes. Mitochondrial membrane के across 5 अलग-अलग complexes होते हैं, complex 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिलके बनता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 से 5 तक, ये क्या काम करते हैं, ये एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, दूसरे को पास कर देते हैं, सेकंड तीसरे को इलेक्ट्रॉन पास करता है, तीसरा फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके ट्रांसफर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर इन दिस वे, ठीक है, बट द प्रोटॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस। अगर मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो हॉरिजॉन्टली होगा, बट प्रोटॉन्स का जो ट्रांसफर होता है इट विल टेक वर्टिकली। तो प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा है वहां से प्रोटॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट साइड वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस। और ये कंसंट्रेशन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, यू ऑल नो दैट डिफ्यूजन विल टेक प्लेस, okay, for our body to work to be in equilibrium, the transfer of certain substances take place across membrane। जहां पे भी कोई भी चीज ज्यादा बन जाता है वो कोशिश करता है नेक्स्ट स्पेस में जाने की ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके अक्रॉस इसके हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन, बट जो प्रोटॉन्स है वो हमारे ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन। जब हम उसका डायग्राम देखेंगे तब वो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक जस्ट आपको एक हिंट दे देती हूँ कि इफ यू सी योर पेज नंबर 223, गेट 3 पेज नंबर 233, आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर 14.4, ओके। इज द बुक ओपन एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी बुक है आपके पास सामने है? यस मैम। ओके, अब उसमें देखो कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये ऐसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और हाइड्रोजन ऐसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप देखो, आई थिंक अभी जो डायग्राम है उसमें येलो कलर और ऑरेंज कलर होगा ना, यस फर्स्ट मैम ऑफ येलो ब्लू कलर, येलो ग्रीन सब है। ब्लू, हाँ ठीक है। कुछ जो पुरानी बुक्स थी, जैसे मेरे पास अभी पुरानी बुक है बट मैं डायग्राम आपको नया वाला बता रही हूँ, तो जो नई बुक्स है उसमें आपका जो कलर कुछ येलो ऑरेंज कलर से आया है, और जो पुरानी बुक है उसमें केवल जो बुक का नॉर्मल कलर होता है वो है और एक ही कलर है ब्लू, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो व्हाट इज द ओल्ड डायग्राम एंड व्हाट इज द न्यू डायग्राम, ओके। मैं अगर अभी आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, ये जो है दिस वन, ये जो भी है दिस वन इज द ओल्ड डायग्राम, ठीक है। ये वाला एक मिनट का हूँ, हाँ यस, दिस वन इज द ओल्ड डायग्राम, ठीक है। इसके अगर ये है आपकी बुक में तो पुरानी बुक है, और एक इसको चेंज होकर एक नया एनसीईआरटी ने डायग्राम बताया, ठीक है ना। तो मैं अभी इसी को आपके सामने रख के बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो आपको ब्लू मेरे यहाँ से दिख रहा है, आपके यहाँ पे कोई दूसरा कलर होगा, ठीक है ना। सो ये जो है This is the place which helps in transfer of electrons। जो मैं आपको बोले, मैं फिंगर्स बता रही हूँ ना, इसके अलॉन्ग अब मैं ये बता दूं कि मेरा पाम है, ये मेरी फिंगर्स है, तो फिंगर्स सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको उसमें लिखा हो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे करके ये है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स मूव करता है, दूसरे से तीसरे, तो ये इसके अलॉन्ग होता है। एंड व्हाट इज दिस ब्लू रीजन? दिस ब्लू रीजन इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दैट आल्सो दिस। ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ये भी आपको डायग्राम से मैं बताऊंगी। ये अभी तो फिलहाल जो आपको जो जगह दिख रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को जहां से इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स ट्रेवल होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे नीचे वाले का रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये तो हुआ कि मैंने आपको ये बताया कि ये फिंगर्स के अक्रॉस कैसे इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है।
मैं ऐसे कर देती हूँ कि ये फिंगर्स के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन कैसे गए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि प्रोटॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे होंगे, डिपेंड करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, ओके। सो हियर नाउ द सेम डायग्राम, इसी सेम डायग्राम में, इस डायग्राम में यहाँ वाला स्पेस देखो, दिस वन, दिस हियर यू कैन सी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। And inside mitochondria, what is present? The gel, the substance which is present is what? Matrix, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की स्पेस है जहां पे हमारा क्रेब्स साइकिल हुआ है एंड लिंक रिएक्शन हुई है। इतनी बात समझ में आई? Matrix of mitochondria is the place where what reaction has taken place? The link reaction means the formation of acetyl coenzyme and the Krebs cycle has taken place, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन वहां पे हुई है, तो इसका मतलब जो हमारे प्रोटॉन्स की फॉर्मेशन हुई है वो कहाँ पे है? वो यहाँ हुई है। तो हमारा हाइयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ पे प्रेजेंट है? दिस साइड इन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे ज्यादा है? इस तरफ है, ठीक है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ गई। अब हम इस तरफ देखते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी आपको क्लियर होगा डायग्राम के थ्रू। बस अभी कंसंट्रेशन को समझो कि हियर हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड प्रोटॉन इज प्रेजेंट। सो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन्स मैंने आपको क्या बोला, वो वर्टिकली जाएंगे। यहाँ से तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, मेरे फिंगर से वर्टिकली हो रहा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं और प्रोटॉन जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे across the inner mitochondrial membrane. So the difference in proton gradient will be maintained because higher number of protons are present here, lower number of protons are present here, so a proton gradient is maintained, ठीक है ना। And to equalize this proton gradient, protons will move from this side, from matrix towards this side. इसीलिए आपको एरो उधर से यहाँ पे आता नजर आ जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोटॉन्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट बच्चे समझ में आया? तो मैं आगे चलूं? यस मैम। यस स्टूडेंट्स, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम। अच्छा चलो मैं एक आध से पूछती हूँ, तब मैं फिर थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा था ऊपर से जा रहा है ये लेसन। ये टॉपिक है वाकई में बहुत हार्ड है और अभी लगेगा सबको समझ में आ रहा है, बाद में लगेगा सब हो गया, ओके। सो उसको रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो मैं किससे पूछ देखती हूँ। आयांश यस मैम। हाँ आयांश, जो भी थोड़ा बहुत आपको ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम समझाया है ना, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दैट डायग्राम, जस्ट थोड़ा सा बताओ मुझे कि क्या समझ में आया। मुझे इतना ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा, तब मैं आगे भी बढ़ूंगी। यस आयांश, whatever you understood, what I have shown you a diagram from NCERT, whatever you have understood, just speak of that and then we'll extend the class, ठीक है। Yes आयांश, अगर नहीं आता है या नहीं समझ में आया, you can say no, you can say no so that I can ask this question to somebody else, ठीक है। बट टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। नो मैम। नहीं आया? नहीं मैम। ओके, तो मैं बस यही कह रही थी कि अब जैसे अभी आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो मैं यही तो बोलती हूँ बार बार आपको बीच में, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप वही मुझे पूछो कि मैम अभी तो आपने हॉरिजॉन्टली बताया, अभी वर्टिकल पे आ गए, तो ऐसा कैसे हुआ? ओके, सो तभी तो मैं, अनलेस यू स्पीक ऑफ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो कोई बात नहीं, विल आस्क सम अदर स्टूडेंट। कीर्ति मलिक, कोई बात नहीं। कीर्ति मलिक, आर यू देयर? पराहर्ष, यस कीर्ति, पराहर्ष, कीर्ति आप आंसर कर रहे हो या तो मैं पराहर्ष को बोलूं?
mic is not working, so type your answer. If anything that you have understood from the NCERT diagram. Because I have to teach everyone, only 1 or 2 students, if they only participate, then it will appear that everything is understood by you. But now 15 students, 14 students are here. So my motive should be that every student should understand what I am teaching. Okay? Yes, Parahash, now it's your turn. Yes, ma'am. हाँ बोलो. Yes, speak. यस पराश बोलो बेटा, टाइम जा रहा है ना, फिर मुझे अभी आगे आगे भी पढ़ाना है. Should I move to next student? Yes बच्चे, should I move to next student? Okay, who has raised hand? मैम हाँ बोलो. मैम बोला तो था अभी. हाँ? Yes, speak बेटा. Okay, Edwin has raised hand. Yes, चलो. मैम इनिशियली मैट्रिक्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. हाँ कैसे, ये एक मिनट ठीक है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इनिशियली मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन ज्यादा कैसे हुआ? मैम ये तो मुझे याद नहीं है, पर इतना याद है कि उसमें ज्यादा है. एक मिनट में बता भी रही हूँ. वो इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पे क्रेब्स साइकिल और एसिटिल कोएंजाइम बना है. ठीक है, तो वहां पे इसीलिए NADH+ और H+ की फॉर्मेशन हुई है ना. ठीक है, इसीलिए वहां पे कंसंट्रेशन H प्रोटॉन्स का ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा. ठीक है, आगे बताओ. यस मैं और इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से. हाँ बोलो, बोलने में एक्चुअली समझ में आएगा कि हाँ आपको कितना समझ में आया. बोलो. मैम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, वो ट्रांसफर होंगे और किसके अराउंड ट्रांसफर होंगे? कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. यस मैम. और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का जो मैम जो वो एनर्जी कम होता है मैम. हाँ एक मिनट. हाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. ठीक है, और जो पहले वाला है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम है और सबसे नीचे वाले का रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. तो इससे इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स मूव करेगा. ठीक है, ठीक है. ओके, और एक और थर्ड पॉइंट क्या बोला आपने? मैम बस. और फिर इंटरमॉलिक्यूलर सरफेस से फिर प्रोटॉन्स फिर नीचे आते. Okay, so inner mitochondrial membrane में electrons will travel down and inner membrane space में protons जो है matrix से travel होके यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, इतना समझ में आया? ओके. ना ये बस बेसिक आप इसका समझ जाओ कि बेसिक में ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल हुआ है तो वहां पे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया. अब वो प्रोटॉन्स को वहां से निकाल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को भी वहां से हटाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स को हमें वहां भेजना पड़ेगा जहां पे हमारा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, सो ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है भी, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो ऑक्सीजन है वहां तक इलेक्ट्रॉन भी तो पहुंचने चाहिए ना, वहां तक प्रोटॉन्स भी तो पहुंचने चाहिए. सो जब वहां पे प्रोटॉन्स आ जाएंगे तभी वो एक्सेप्ट करके उसको वाटर मॉलिक्यूल में चेंज करेगा. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस तरफ पे. ओके, तो मैंने आपको EDS समझा दिया. EDS की आपकी डेफिनेशन है द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर. ठीक है, नाउ द साइट where the oxidative phosphorylation takes place. ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन एक वाटर मॉलिक्यूल की जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है और ATP की फॉर्मेशन जहाँ पे हो रही है, उसका जो साइट है, द साइट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल में. आपको याद रखना है मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, इनर और एक आउटर. ठीक है, इनर वाली डीपली फोल्डेड होती है और आउटर वाली स्ट्रेट होती है. याद आया? ठीक है, तो ये जो साइट है जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा मींस फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल
that will take place where in the inner mitochondrial membrane. ये ATP की फॉर्मेशन और जो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है वो होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, ओके। अब जो हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके हम नाम याद कर लेते हैं। व्हाट आर द 5 कॉम्प्लेक्सेस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपका फर्स्ट है, ये है, this is the first complex which accept that electron and which allows the protons to pass through it, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन that is NADH dehydrogenase, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जिनेस है ना जहाँ पे, तो इट मींस इट्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये NADH से हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ले रहा है, इसीलिए इसका नाम है NADH dehydrogenase। ये प्रोटॉन्स को लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भी लेगा। प्रोटॉन्स को तो ये आगे मैट्रिक्स से निकाल देगा और आगे ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अपने बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेगा। तो ये NADH will pass the electron to the next complex. The next complex is succinate dehydrogenase, ठीक है। Succinate dehydrogenase will transfer the electron to the third complex. The third complex is cytochrome BC1 complex, okay, and this complex cytochrome BC1 complex will in turn take the electron and transfer it to the next complex which is cytochrome C oxidase, okay। ये जो C oxidase है, this is the complex number 4, and ultimately the ATP यहाँ से ये जो cytochrome C oxidase है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन जो है एटीपी की क्रॉस होके एटीपी जो है, एटीपी में मैंने आपको बताया था कि द मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल इट हैज 2 कॉम्प्लेक्सेस, एक F0 और एक F1, ठीक है ना। तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हाउ दे हेल्प टू टेक द प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स and to how it helps to take the protons from a higher concentration and helps it to transfer protons from a higher concentration to a lower concentration। तो ये हमारे पांचों कॉम्प्लेक्सेस एक के बाद एक आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, और ये बहुत सारे कंसंट्रेशन, जब सारा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा मैट्रिक्स के ऑपोजिट साइड, मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारा प्रोटॉन जब बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में था, वहां से निकल के सारा प्रोटॉन्स कहाँ पे आ गए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। जब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारा प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो वो जो सारे प्रोटॉन्स हैं वो एटीपी सिंथेज, जो हमारा एक 5th कॉम्प्लेक्स है, उसको इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे कि एटीपी सिंथेज एक्टिव हो जाएगा, एंड इट विल help ADP and phosphate to combine to each other to form ATP। ATP सिंथेज एक जस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है, ये ATP नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है जो कि ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और वो तब करेगा जब ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस ये प्रोटॉन को हेल्प करेंगे ट्रांसफर करने में, और प्रोटॉन का बहुत ज्यादा जब कंसंट्रेशन आपके इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा प्रोटॉन का, तो वो एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट करेंगे। एटीपी सिंथेज अपने अंदर से प्रोटॉन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगा, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो वो हेल्प करेगा ADP से फॉस्फेट को कंबाइन होने में, ताकि एटीपी की फॉर्मेशन हो, और इस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब एक और, अभी है इसमें 12:52, ओके। सो आज के लिए इतना रहने दो, या बता दूं ये कंसेप्ट और बाकी रह गया था। यस बच्चों, ये 4 लाइनें और रह गई थी मुझे समझाने के लिए, सो शुड आई लीव हियर? मैम मत पढ़ाओ वो भी। चलो ये इतना सा बता दो हमें। हाँ, क्योंकि ये फिर दोबारा से लिखना और फिर दोबारा से बताना पड़ेगा, तो वैसा हार्ड नहीं कि आपने पढ़ा होगा, मुझे रिवाइज करवाना है। मैम एक छोटा सा डाउट है, बुक में, नए बुक में हाँ कॉम्प्लेक्स 5 करके कुछ मार्क करके नहीं रखा है। हाँ, वो डायग्राम भी है एक्चुअली, क्या है कि एनसीईआरटी का सेम डायग्राम आई वाज ट्राइंग टू शो यू,
बट आई कुडंट फाइंड अ क्लियर डायग्राम। उसका क्लियर डायग्राम मुझे एनसीईआरटी का इसमें शो करने के लिए नहीं मिला। पीपीटी तो मैं आज भी कर रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई पीपीटी के थ्रू, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट मुझे एनसीईआरटी का बिल्कुल क्लियर डायग्राम मिल नहीं पाया जो नया वाला आया। पुराना है बट वो बहुत धुंधला सा है, बट आई एम ट्राइंग टू टेक दैट नेट न्यू डायग्राम, ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम, ठीक है ना। ओके, सो कल मैं देख के आपको बताती हूँ नया डायग्राम। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 है, उसका जो ग्रेडियंट है कॉम्प्लेक्स 3 से ज्यादा है क्या? क्योंकि बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स 3 के नीचे दे रखा है। किसका किसका इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ज्यादा दिखाया है? मैम कॉम्प्लेक्स 2 को नीचे दे रखा है कॉम्प्लेक्स 3 के, और उसके नीचे कॉम्प्लेक्स 3 से नीचे दे रखा है। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, वो देखते हैं अभी हम। वो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेशन एक्चुअली ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसमें क्या है कि ये प्रोटॉन्स को एक्चुअली ट्रांसफर करने में हेल्प नहीं करता, ये केवल इलेक्ट्रॉन्स को ले पाता है। तो शायद इसकी वजह से, फिर मैं डायग्राम देख के क्लियर बता पाऊंगी, अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट यू आर सेइंग डायग्राम। हाँ यस मैम, उसमें आके फिर इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं जाता है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन जो वो आगे ट्रांसफर नहीं हो, जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर पाता, केवल इलेक्ट्रॉन्स को करता। तो कुछ इस तरह से है वहाँ पे, मैं आपको कल बताती हूँ वो डायग्राम क्लियरली देख के। मेरे पास भी एक्चुअली पुरानी बुक है, ठीक है ना। ओके, हाँ मैं ये बता रही थी आपको, ये वाला कंसेप्ट। ओके, इसके बाद की कोई क्लास है? नो मैम। ओके ठीक है, तो बस मुझे ये बताना है इसका कंसेप्ट जो हम कल यूज करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि टुडे योर क्लास इज बेसिक क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग टुमारोज कंसेप्ट। मुझे पता था एक क्लास में नहीं हो पाएगा, तो कल हमारा लेसन भी फिनिश हो जाएगा और हम इस कंसेप्ट को पूरा भी कर लेंगे। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी, जो भी आज की क्लास में आपने पढ़ा एक बार जाकर घर जाके रिवाइज करोगे, तभी आपको कल तक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है ना। एटीपी आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ पे बनी है। यहाँ पे हम NADH की फॉर्मेशन देख रहे हैं क्योंकि हमें प्रोटॉन से मतलब है, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, हियर द ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH plus H+ की फॉर्मेशन हुई है। आप ग्लाइकोलिसिस का व्हेन यू सी द पाथवे, देयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू what are the step where 2 NADH plus H+ is formed, ठीक है। तो वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आपकी जो NADH plus H+ की फॉर्मेशन है वो 2 हुई है, ठीक है। देन जो आपका लिंक रिएक्शन है मींस when the pyruvic acid is changed to acetyl coenzyme, there also in that reaction it also involves the formation of 2 NADH plus H+, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन या एसिटाइल कोएंजाइम की जब फॉर्मेशन हुई थी, वहां पे भी हमारे 2 NADH है। एक पाइरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो एक ही NADH निकलेगा, लेकिन आपको क्या बताया था कि एक ग्लूकोज की जब ब्रेक होता है तो 2 पाइरुविक एसिड बनती है। तो 2 पाइरुविक एसिड से जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे तो कितना आपके NADH निकलेंगे? 2, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH plus H+, link reaction or formation of acetyl coenzyme also form 2 NADH plus H+. Then we are left with Krebs cycle. तो Krebs cycle में NADH हम देखेंगे 3 स्टेप्स पे बने हैं। 2 हमारे कंसेक्यूटिव स्टेप्स थे जहाँ पे NADH plus H+ की फॉर्मेशन हुई थी, और एक हमारा 1-2 स्टेप छोड़ के एक और बना था, ठीक है ना। तो 3 जगह हमारे NADH plus H+ की फॉर्मेशन होती है। वो तो था एक एसिटाइल कोएंजाइम से, ये साइकिल 2 बार घूमेगा ना, क्योंकि 2 पाइरुविक एसिड हमारे बने हैं, ठीक है। तो जो सेकंड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है वो दोबारा NADH की फॉर्मेशन 3 प्लेसेस पे करेगा, सो इट विल बी 2 × 3 NADH plus H+, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया, और लास्ट में हमारा जो FADH2 बना है दैट इज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग Krebs साइकिल। Krebs साइकिल में हमारा 2 FADH2 भी बना है। एक साइकिल में एक FADH2 बनेगा, फिर दूसरे पाइरुविक एसिड से फिर एक और FADH2 बनेगा। तो ये हमारा टोटल आउटपुट होगा किसका? प्रोटॉन्स का, ठीक है। तो H+ की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। ओके, तो 38 ATP जो हमारी पूरी फॉर्म हुई है उसमें से 34 जो है वो FADH2 और NADH plus H+ के फॉर्म में है, ठीक है। 38 ATP जो हमारा फॉर्म हुआ है उसमें से 34 जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ either FADH2 or NADH plus H+. So I am ending my class here.
So this is all for today, and tomorrow we are going to see how the different complexes